Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, today we will read lesson number 7. Under this lesson, we will learn the use of was and were. And as you know, we have informed you that there are three kinds of these sentences. One of them is affirmative sentences, and second is interrogative sentences, and second negative sentences, and third interrogative sentences. And interrogative sentences has also affirmative and negative. So interrogative affirmative and interrogative negative sentences. And also you know that if anybody want to translate the sentence of Hindi language from the sentence of Hindi into English language, so first he should search where is subject in Hindi sentence. While translating from Hindi into English, a student should write the subject first. Dear students, if any student want to translate from Hindi into English language, so at that time he should see in Hindi sentence where is subject and where is verb, where is object. While translating from Hindi into English, he should first write subject. After that, according subject, he should write the verb, and in last, object. See here, model sentences. Hindi sentences is here, मैं निर्धन था. I was poor. I was poor. It is the sentence of affirmative sentences. I was poor. Dear student, look carefully that मैं निर्धन था. This is Hindi sentence. And English translation is here, I was poor. Here is I subject, was, verb, poor, object. And like this, other sentences also, Richa meri mitra thi. When you will search where is subject in this sentence, so you will find Richa is subject. First we should write subject Richa, and after that where is verb in this sentence, thi, it is verb. Richa was. According Richa we will write here was, because for plural subjects we should write verb, otherwise for singular we should write was. So Richa meri mitra thi, Richa was my friend. Like this, see here, लड़के प्रसन्न थे. In this sentence, लड़के, boys, are subject. The boys, थे verb. The boys were person happy. The boys were happy. वे खिलाड़ी थे. They were players. Now see the रूल एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रांसलेशन. इस प्रकार के वाक्यों में था, थे, थी का अनुवाद वाज वर करो.
Like these kinds of sentences, we should translate of tha, the, thi in was, were in English language. I, he, she, this, that तथा एक वचन की संज्ञाओं जैसे ऋचा, आई, ही, शी, इट, दिस, दैट, एंड singular noun, for singular noun we should write was. And as you are seeing in example 1 and 2, Richa मेरी मित्र थी, Richa was my friend. Richa is here singular, so here is was. And like this, मैं निर्धन था, I was poor. Here I is singular subject, therefore verb is here plural was. We, you, they, these are plural. And like these plural nouns, for plural nouns we should use were. I mean were will be used for plural nouns and we, you, they. Dear students, as I think you have understood these rules and regulations, and also you have learned that there are 3 kinds of sentences: affirmative, negative and interrogative. Now I would like to tell you in Urdu language. अजीज तलबा, आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 7। इसके तहत वाज वर का इस्तेमाल हुआ है और इस वाज वर को 3 सेंटेंसेस यानी 3 जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। एक अफर्मेटिव में, दूसरा नेगेटिव में और तीसरा इंट्रोगेटिव में। आज हमें लेसन नंबर 7 के तहत वाज वर का इस्तेमाल अफर्मेटिव की सूरत में पढ़ना है। आदर्श वाक्य मॉडल सेंटेंसेस, हिंदी वाक्य अंग्रेजी अनुवाद, यानी हिंदी जुमले और अंग्रेजी जुमले। मैं निर्धन था, आई वॉज पुअर। यह बात आपको बताई गई कि जब भी हम हिंदी से अंग्रेजी बनाना चाहें तो सबसे पहले इसका जो कायदा है और कानून है उसको जहन में रखते हुए हमें फाइल को पहले लिखना होगा। यानी अंग्रेजी में सबसे पहले फाइल लिखेंगे, उसके बाद में फेल लेकर आएंगे और उसके बाद में मफरूल लेकर आएंगे। इस जुमले में देखिए, मैं निर्धन था, इसमें मैं फाइल है आई। अब इसका जो वर्ब होगा वाज इस्तेमाल होगा, चूंकि आई ये फाइल है, वाहिद है, तो आई वाज पुअर, मैं निर्धन था। अब मैं निर्धन था, इस हिंदी जुमले में मैं फाइल हो गया, था ये वर्ब हो गया और निर्धन ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई वाज पुअर, मैं निर्धन था। इसी तरीके से रिचा मेरी मित्र थी। अब इसमें आप तलाश करेंगे फाइल को, सबसे पहले तो फाइल इसमें रिचा है, रिचा लिखेंगे। इसके बाद में वर्ब को तलाश करेंगे तो थी वर्ब है, तो रिचा वाज। अब चूंकि रिचा वाहिद है इसलिए वाज का इस्तेमाल हुआ है। और मेरी मित्र ये माय फ्रेंड, रिचा मेरी मित्र थी तो रिचा वाज माय फ्रेंड। लड़के प्रसन्न थे, इसमें भी द बॉयज फाइल है। अब द बॉयज जमा है इसलिए वर आ जाएगा इसका फेल, और हैप्पी, द बॉयज वर हैप्पी, लड़के खुश थे, प्रसन्न थे। वे खिलाड़ी थे, देवर प्लेयर्स, देवर प्लेयर्स, वे खिलाड़ी थे। अनुवाद के नियम, ट्रांसलेशन के तरीके, उसके कवानीन। इस प्रकार के वाक्यों में, इस प्रकार यानी जिसके आखिर में था, थी, थे हो का अनुवाद वाज वर करो। किससे करेंगे? वाज वर करेंगे। और फिर आगे ये नियम और कायदा बता रहे हैं कि अगर फाइल आई, ही, शी, इट, दिस, दैट तथा एक वचन की संज्ञा यानी सिंगुलर नाउन हो, वाहिद इस्म हो, जैसे रिचा है, गीता है, तो इन सब के लिए वाज लगाओ। क्या लगाओ? वाज लगाओ। मिसाल 1-2 में आप देख चुके हैं, मैं निर्धन था, आई वाज पुअर, रिचा मेरी मित्र थी, रिचा वाज माय फ्रेंड। और इसी तरह कह रहे हैं कि अगर फाइल जमा हो, क्या हो? फाइल जमा हो, जैसे वी, यू, दे और बॉयज प्लेयर्स, ये सब जमा फाइल अगर हैं तो इनके साथ वर लगाओ।
उदाहरण 3 व 4 देखो। जैसे लड़के पर्सन थे, द बॉयज वर हैप्पी, वे खिलाड़ी थे, दे वर प्लेयर्स। अजीज तलबा ये कायदा हुआ। अब आइए इसके तहत एक्सरसाइज नंबर 7 कल करके लाना है। निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद नीचे दिए हुए स्थान पर लिखो। लता अच्छी लड़की थी, अकबर एक राजा था, वे लड़के लंबे थे, कल रविवार था, लड़के स्कूल में थे, गोपाल गरीब था, कल छुट्टी थी, तुम्हारा भाई बीमार था। अब ये मुश्किल अल्फाज की अंग्रेजी लिखी। अच्छी गुड, लड़की गर्ल, राजा किंग, लंबे टाल, बॉयज लड़के, संडे रविवार, स्कूल स्कूल, पुअर गरीब, हॉलीडे छुट्टी, योर तुम्हारा ब्रदर भाई। इसके बाद में ये अंग्रेजी है। निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी अनुवाद नीचे दिए हुए स्थान पर लिखो। शी वॉज रिच, इट वॉज बुक, द बॉयज वर हैप्पी, इट वॉज हिज पेन, गोपाल वॉज माई फ्रेंड। रिच अमीर, हैप्पी पर्सन, फ्रेंड मित्र। अजीज तलबा आज के लिए बस इतना ही। फिर हम कल वाज वर का इस्तेमाल नेगेटिव की सूरत में देखेंगे। फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। आप लोग जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको मुकम्मल करते रहिए, इसकी एक्सरसाइज करके लाइए और इसके जो कायदे बताए गए हैं उसको याद कीजिए, जहन में बिठाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है, बात समझ में आई?